Friends, test checking is having advantages. Whatever advantages we have discussed, that is correct. But at the same time, test checking is having some disadvantages also. When auditor goes for sampling, it is having some disadvantages also. So it does not mean when there is disadvantage, auditor will not do test check. It's not like that. ऐसे तो नहीं कर सकता. उसको samples pick करना ही है. तो disadvantage क्या है? उसको कैसे avoid कर सकते हैं? उसको क्या precautions लेना है? वो भी हम आज discuss करेंगे. ठीक है? So let us go ahead with the disadvantages. Okay, what may happen when auditor goes for sampling or test check? Okay. एक तो आर्बिट्ररी और बायास्ड सिलेक्शन हो सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय बायास्ड सिलेक्शन बच्चों? ऑडिटर जो भी सिलेक्शन कर रहा है पर्सनल जजमेंट पे, कहीं पे भी वो कैलकुलेशन वगैरह ये नहीं कर रहा है कि कितना सैंपल्स उठाना है, कितना सैंपल से कौन सा ट्रांजैक्शन से कितना सैंपल उठाना है, ये पूरा ऑडिटर का पर्सनल जजमेंट के ऊपर है. तो हो सकता है जितना भी उसने सिलेक्शन किया है वो प्रॉपर नहीं है, बायास्ड सिलेक्शन है, वन साइडेड है ना. वी विल टेक द अगेन सेम एग्जांपल. समझो प्रिंसिपल सर आए, ओके सर आके सीधा SYBCom के क्लास में आए, 100 बच्चे हैं, सर को फीडबैक के लिए 30 बच्चे चाहिए. तो सर आए सीधा रैंडमली, ये तुम आ जाओ, यू कम यू आल्सो ज्वाइन बोल के 30 बच्चे को सर लेकर जाए. तो ये क्या हो जाएगा? बायास्ड सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सर ने रैंडमली पिक किया, कोई सिस्टम नहीं है. वो 100 बच्चों में से 30 जो उठाए, हो सकता है वो इरेगुलर बच्चे हैं, हाजिया की क्लास में बैठे हैं, है ना. सो दिस इज वन इश्यू. whenever auditor goes for test checking, biased selection may happen. Am I clear with what is biased selection? You understood, bachcho? What is biased? You understood? In other sense, why a biased selection is happening? Because auditor is not applying any statistical technique. कुछ calculation technique apply नहीं किया है. Okay, वही समझो प्रिंसिपल सर 100 में से 30 बच्चे जब लेंगे ना, सर पहले अटेंडेंस चेक करके, प्रॉपर मेथड अप्लाई करके, है ना, कौन से बच्चे रेगुलर है, कौन से एवरेज अटेंडेंस है, कौन से इरेगुलर है, उसमें से 30 अच्छे से उठाएंगे. देयर इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड सर विल बी अप्लाइंग. But in case of test checking, statistical method is generally not applied, and because of this, bias selection may happen. Okay, with this, quality of decision, quality may be ignored. Okay, because it does not indicate how the samples to be selected. Test checking में ये नहीं है, किधर भी लिखा नहीं है कि samples कैसे निकालना है. Okay, so the quality of samples which auditor is picked, those quality may not be good. As I told, जो principal sir ने 30 students feedback के लिए लिया है, those 30 students may be irregular students. How come they will give the feedback about a teacher when they themselves are irregular? Same way, यहाँ पे जब auditor जो samples उठाता है, randomly pick किया, कोई method नहीं follow किया, then quality of the samples may not be good. So that is one more disadvantage. यहाँ तक clear? Then there may be 2 risks which may arise because of test check. What are those 2 risks? One is auditor is too much depending upon the internal control system. वो क्या सोच रहा है? The system is very good, very strong. मुझे ज्यादा कुछ यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिस्टम अच्छा चल रहा है, तो मैं randomly ऐसे थोड़ा बहुत चेक करूंगा. So he is too much relying the internal control system of the company. So that is one disadvantage. Second, he may go to a wrong conclusion also. Because of the wrong samples picked, as I told, है ना, जो 30 बच्चे सर ने SYBCom क्लास से पिक किया था, वो इरेगुलर बच्चे हैं, उन्होंने जो फीडबैक दिया, उसके वजह से सर रॉन्ग कंक्लूजन में भी आ सकते हैं, है ना. वो बच्चे बोल सकते हैं हमें ऑडिटिंग क्या है पता ही नहीं है, कौन सा टीचर है वो अच्छे नहीं पढ़ाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे नेवर अटेंडेड माय लेक्चर. इसके वजह से प्रिंसिपल सर मुझे बुला के हाँ सब सुनाया, क्योंकि सर ने सोचा फीडबैक अच्छा नहीं है. But actually what has happened, the 30 students or the sample sir which had picked, it was not proper, है ना. So in this way,
These are some of the disadvantages which may arise because of test checking. Yes, recording. So when so many disadvantages are there, जब इतने सारे disadvantage है, ऐसे नहीं है कि auditor test check नहीं कर सकता, samples तो उठा नहीं है, क्योंकि पूरा checking तो impossible है, time consuming है. तो क्या करना पड़ेगा जब samples उठाता है, he have to take some precautions. Okay, so what kind of precautions auditor is supposed to take whenever he picks the samples? So let us understand. Okay, first what he is supposed to do, he have to classify the transaction with proper heads. जितना भी transactions है auditor के पास, उसको proper heads से classify करो, divide करो, है ना? Maybe periodic basis में divide करो, या maybe amount basis में divide करो. It depends how the auditor will take. Okay, समझो 10 लाख के ऊपर वाला सेल्स एक बंच उसने अलग किया. Okay, 10 लाख से बिलो सेल्स, 10 लाख बिलो सेल्स. Okay, एक bunch अलग किया. Again 10 lakh above sales में he is seeing 10 to 15 lakhs का sales कितने हैं. Then 16 to 20 lakhs का sales कितने हैं. Again 10 lakh below में 5 to 10 lakh के sales कितने हैं. 1 to 4 lakhs के sales कितने हैं. So vouchers ऐसे divide किया. Then उसमें से थोड़े 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 samples उठाया. तो then it will be effective, है ना? पूरा उसने सारे सेल्स कवर कर सकता है उसमें. So that what is needed from auditor side, classify the transactions properly. So we will come back to that example which I had given, a principal sir वाला. So समझो SYBCom के क्लास में 130 स्टूडेंट्स में सर पहले अटेंडेंस लेंगे. ओके, अटेंडेंस वाइज क्लासिफाई करेंगे स्टूडेंट्स को, रेगुलर, ओके, स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, इरेग्युलर स्टूडेंट्स बोल के. ओके, समझो रेगुलर स्टूडेंट सर ने पिक किया, अराउंड 40 स्टूडेंट्स रेगुलर है SYBCom बी डिवीजन के. ओके, देन अराउंड 30 स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स है. ओके, रिमेनिंग 40 प्लस 30 70 हो गया. रिमेनिंग 60 स्टूडेंट्स आर इरेगुलर. से फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, सो रिमेनिंग 60 आर इरेगुलर. अभी सर क्या करेंगे, उनको 130 में से समझो 30 चाहिए फीडबैक के लिए. 30 स्टूडेंट्स आर नीडेड फॉर द फीडबैक. So what sir will do, out of 40 regular students, sir will pick some 20 students for feedback, and out of regular average students, he will pick some 10 students. So here 30 students मिल गया. In this way, if sir will take the feedback, then it will be effective. क्योंकि ये जो 30 सर ने पिक किया है, वो either regular और average attendance वाले students हैं. मतलब उनको कुछ ना कुछ तो टीचर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पता है, right? So now there, whatever feedback they will give, it will be a proper feedback. Agree with me, students? Yes, all of you agree with me. So in this way, auditor is supposed to classify the transaction. At the same time, he should follow a system and procedure for a transactions to be studied. Okay, जो अभी 30 पिक कर दिया सर ने, so ये 30 स्टूडेंट से क्या मेथड में फीडबैक लेना है, when to take the feedback, all these things एक सिस्टम रेडी करके रखना चाहिए, है ना? So same way, auditor जब transactions 30% 40% pick किया है, so he have to follow a system and procedure how these 30% to be studied, how these samples to be studied, how it has to be verified, which team will do, when to verify, all these things auditor have to plan properly, है ना? We call it as test check plan. Auditor के पास एक plan ready होना चाहिए, and at the same time he have to study the control system of the company. Very very important. Okay, 30% pick करना है या 80% samples pick करना है, it depends on internal control system. Yes students, correct? If the system is weak, if the internal control system is weak, tell me student whether he will pick 30% sample or 80% sample. समझो कंपनी का सिस्टम वीक है, तो ऑडिटर 30% सैंपल पिक करेगा कि 80% सैंपल? कैन एनीवन आंसर क्विकली?
what I'm asking you, if the internal control system of the company is weak, it is not strong, system weak है, तो ऑडिटर 30% सैंपल पिक करेगा कि 80%? एब्सोल्युटली करेक्ट शुभम, मानसी एंड साहिल had answered me, रेणुका has answered me 80%, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, क्योंकि उसको पता है सिस्टम वीक है, वही उसको लगता है स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से सिस्टम चल रहा है ना, देयर इज नो लूप होल्स, देन उसको ज्यादा चेकिंग की जरूरत नहीं है, he will go for 30%. In this way, auditor will decide his samples based on the internal control system of the company. All of you understanding, है ना? Very good. Then, whenever he picks the sample, there should not be any bias in selection. है ना, ये वन साइडेड सिलेक्शन मैंने बताया ना, सिर्फ उसने क्या किया है, अप्रैल से मई मार्च तक ट्रांजैक्शन हुआ है, नेक्स्ट मार्च तक, या से हाँ यस अप्रैल 2020 से मार्च 21 तक उसको ट्रांजैक्शन पिक करना था, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ जून का ही सैंपल्स उठाया 30% कंप्लीटली. What is happening here? This is a bias selection. बाकी सारे मंथ्स का सैंपल्स चेक ही नहीं किया उसने, सो दिस शुड नॉट हैपन, है ना, देयर शुड नॉट बी एनी बायस्ड सिलेक्शन. देन ऑडिटर शुड अवॉइड टेस्ट चेक वेयर इट इज नॉट सुटेबल. हमने डिस्कस किया ना, कहाँ पे टेस्ट चेक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे बहुत कम ट्रांजैक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है सारे, तो वहां पे ऑडिटर कैन नॉट अप्लाई टेस्ट चेक. ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. समझो प्रिंसिपल सर फीडबैक लेने जा रहे हैं, दो क्लास है. ओके, एक क्लास है SYBBI जहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है, सिर्फ है ही 30 स्टूडेंट्स, और दूसरा क्लास है SYBCom, वहां पे 130 स्टूडेंट्स है. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, वेयर ऑडिटर कैन अप्लाई टेस्ट चेक एंड वेयर ही कैन नॉट अप्लाई टेस्ट चेक, where it is not needed. प्रिंसिपल सर अभी कहाँ पे सैंपल्स उठा सकते हैं और कहाँ से नहीं उठा सकते. SYBBA में सैंपल उठाने की जरूरत नहीं है, मैं करेक्ट, बिकॉज है ही 30 स्टूडेंट्स, सारे 30 स्टूडेंट्स से फीडबैक ले सकते हैं. लेकिन SYBCom में 130 स्टूडेंट्स है, सो 130 भी रेगुलर नहीं है, तो वहां पे सैंपल्स उठाना ही पड़ेगा सर को. आई एम आई क्लियर? सो wherever the test checking is not suitable, their auditor cannot apply test check. वहां पे full checking की जरूरत है. When I say test check apply नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या है बच्चों, full checking करना है. Am I clear? Okay. Next, we have to decide on number of transactions. पहले ही उसको decide करना चाहिए. Okay, कितना transactions चेक करने वाला है. उधर जाके वाउचर्स हो इतने सारे, चलो एक 10 वाउचर चेक करेंगे, वैसे उधर जाके डिसाइड नहीं करेगा. एज आई टोल्ड, इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितने एविडेंसेस अवेलेबिलिटी है. पहले ही ऑडिटर टेस्ट चेक प्लान करके कितना सैंपल्स उठाना है, कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चेक करना है, पहले ही उसको डिसाइड करके जाना चाहिए. ओके, then he also have to decide the significance of errors. Okay, if error is happening, उसने आइडेंटिफाई किया एरर है, तो वहीं पे छोड़ना है कि और थोड़ा डिटेल में चेक करना है, वो पहले ही डिसाइड करना है. क्योंकि कुछ एरर है जो माइनर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वो जस्ट उसको रेक्टिफाई करवा सकता है और आगे उसका डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है. बट कुछ एरर है जो मेजर है, उस पे प्रॉफिट पे असर पड़ सकता है, तो उसको डिटेल में उसको आगे चेकिंग करने की जरूरत है. सो यू हैव टू डिसाइड ऑन significance of error in the beginning itself. So if auditor takes all these precautions properly, then students test checking will be pakka helpful for an auditor, है ना. It saves his time, it saves the cost to the company, to the client, है ना. It saves, he can give importance to the material transactions, he can give importance to the give more time to the important areas by doing test check. But he have to apply all these precautions before going for test check. Okay, so hopefully you understood till here बच्चों टेस्ट चेक क्या होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है, एंड क्यों चाहिए टेस्ट चेक, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. सो बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज
क्या प्रिकॉशंस लेना है ऑडिटर को, और सैंपल्स पिक करते कैसे सैंपल्स पिक करना है, इतना सारा हमने टेस्ट चेक के बारे में डिस्कस किया. होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल दिस प्रॉपरली स्टूडेंट्स. यस, ओके. नाउ टेस्ट चेक का जो अपोजिट रहता है, ओके, वो है रूटीन चेकिंग. व्हाट इज रूटीन चेकिंग? टेस्ट चेक में सैंपल्स पिक करके ऑडिटर चेक करता है, लेकिन रूटीन चेकिंग में फुल चेकिंग होता है, कंप्लीट चेकिंग होता है. सो व्हेन ऑडिटर इज नॉट डूइंग टेस्ट चेक मींस व्हाट इज डूइंग रूटीन चेक. What do you mean by routine check? When the companies are small, when the transactions are less, each and every transactions are checked by the auditor and his team. That we call as routine checking. और routine checking बहुत कम होता है क्योंकि जब transactions बहुत सारा है, each and everything cannot be checked. So what is routine checking? Checking the arithmetical accuracy of books of original entry and ledger with a view to detect clerical errors and simple frauds. तो रूटीन चेक क्या होता है? जब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहा है तो चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, वो मैथमेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं हुआ है. एक एक अमाउंट को जब चेक करते हैं, एक एंट्री को, एक एक पोस्टिंग को जब चेक करते हैं, उसको हम रूटीन चेकिंग बोलते हैं. नॉट टेकिंग द सैंपल्स, चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग. देखो, चेकिंग ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग मीन्स टोटल, ठीक है, टोटलिंग. Subcasting, carry forwards, checking posting of the ledger, extraction of their balance, everything in detail जब auditor check करता है ना, उसको routine check बोलते हैं. But routine check हर जगह apply नहीं हो सकता. So what is the difference between test check and routine check? Test check selected number of transactions पे apply होता है, whereas routine check checking all the transactions. That is one difference. सेकेंड, टेस्ट चेक में इमटेरियल आइटम्स अवॉइड करते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है. इमटेरियल वर्ड का मतलब क्या है? जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कंपनी में, तो उसको हम इमटेरियल बोलते हैं. तो टेस्ट चेक में इमटेरियल आइटम्स को अवॉइड करते हैं. रूटीन चेक में इमटेरियल आइटम्स भी चेक करेंगे क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज चेक ना. ओके, एंड व्हाई टेस्ट चेक इज डन? to obtain the satisfaction कि all books of accounts are properly prepared. बट रूटीन चेक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक्यूरेट है कि नहीं ईच एंड एवरी अमाउंट, ये जब चेक करना रहता है तो ऑडिटर रूटीन चेक पे जाता है. एंड टेस्ट चेक कहाँ पे अप्लाई होता है? जनरली जब कंपनी बहुत बड़ा है तो सैंपल्स पिक करके चेक करते हैं. जब कंपनी छोटा है, कम ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो कौन सा मेथड बेटर है? रूटीन चेकिंग इज बेटर. एंड कहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड डिटेक्ट ना होने का पॉसिबिलिटी है? यस, देयर इज मोर चांस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स नॉट गेटिंग डिटेक्टेड इन केस ऑफ टेस्ट चेक, whereas रूटीन चेक में देयर इज वेरी लेस चांस कि एरर एंड फ्रॉड ना डिटेक्ट हो, क्योंकि ऑडिटर पूरा चेकिंग कर रहा है रूटीन चेक में. तो आप ये बोलोगे कि मैम फिर रूटीन चेक क्यों नहीं करता है जब एरर फ्रॉड सारे आइडेंटिफाई हो रहा है? But routine check is very impossible if a company is very huge and so many transactions are happening. So routine check auditor नहीं कर सकता. So generally auditors test check करते हैं, but taking all the precautions which we discussed. Okay. So students, till here